So let us start with our topic, that is frequency distribution. Fine. In the frequency distribution, the first thing that is we need to understand is the first point to understand is frequency or observation. This is the topic. The chapter name is frequency distribution. And here, the first thing we will understand, the concept that we need to understand is the concept of observation and frequency. Fine. This is the first point we'll understand. Now, in order to understand what is observation and what is the frequency, let us just take a view the daily number of car accidents. It's daily number of car accidents in Kolkata or any area. So, just taking a number, have huge number of data. It could be a huge data. As statistics, it is what we learn is just how to extract information from data, how to interpret and how to get the correct information. See, this is just a set of data that we just had a look at it. It's daily number of car accidents in Kolkata. This is just a number of figures that we are observing. Fine. So now what we observed here? What we observed here is here the variable that we observed is the variable that is observed here is what we observed here is it is the daily number of car accidents. Fine. So what is the variable that we observe? The variable is anything that we are observing. So here the variable observed is the daily number of car accidents. Fine. And what we got from the observation, actually when we observed we got something na, and we got the data. So what we call this data is the data obtained from this observation is known as observations, or we also called it as observed values. We also define this as measurements, right? So is this clear? Now in this frequency, see, we need to understand the concept first. हमें पहले concepts को समझना है. क्या क्या concept हमें यहाँ पे समझने को मिल रहा है? What are the different things that we are understanding? This is a data. This is just a set of data, right? This is a data about daily number of car accidents in certain place. Now, since we have observed the data, मैंने क्या देखा, हमने किस चीज को लेकर observation की, तो हमने जो ऑब्जर्वेशन की हमने देखा या हम एनालाइज कर रहे हैं कितने कार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं डेली. सो दिस इज द वेरिएबल इज अवर मेन कंसर्न हियर. सो द वेरिएबल दैट वी ऑब्जर्व्ड इज द डेली नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स. अब जब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वी गॉट द डेटा. अब इसके बारे में हमें पूरी डेटा मिल रही है. लाइक वी गॉट इट लाइक एक फर्स्ट तारीख को इतनी हुई, सेकेंड को इतनी हुई. तो these are the dates and their corresponding figures that we are getting. Fine. So this one thing. Now let me go into statistical language. Now if I say if n observations variable x are available. N observation matlab n is the number of observation on a variable x are available. X is the variable. It could be daily number of car accident or anything. Then we can represent this as they are usually denoted by we can write this as x1, x2, x3 and I can just write it till xn. Fine. So this is the way we write this. So what we understood from this line, if you have n number of variables, make this very clear. If you have n number of observations, sorry, n is the number of observation, that is 4, 2, 3. कितने हमारे observations होगा? Like 4,
and 4 4 is 16. So 4 into 4 is 16. So I got 16 observation on a variable x. So what is the variable? Variable is the daily number of car accidents. Fine. So now you must have understood about what is variable and what is data. Fine. Now here when we say it is x1 or x2, what does it denote? It simply means that x1 is the first observation, right? Whereas x2 is the second observation, like 4 is the first stage observation. फर्स्ट में को 4 एक्सीडेंट थे, सेकंड में को 2 एक्सीडेंट्स थे, थर्ड में को 3 एक्सीडेंट थे. तो इस तरीके से व्हेन वी से x1 x2 x3, तो वी आर डिनोटिंग दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड सो ऑन. और हम xn क्यों मेंशन करें? मींस इट डिनोट्स द nth ऑब्जर्वेशन ऑन x. मतलब इट कुड बी एनी नंबर, नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं ना. सो वी डिनोट दिस एज nth, x to the power means xn, xn, that is x to the nth number of observation. We define this way. So in general, we xi denotes the ith observation, right? We write in this way. In statistical term, we use this as xi. Right? I बोलिए, n बोलिए, anything you can say. So ith observations on x, where my I is equals to 1, 2, 3 till n. कुछ भी नंबर हो सकता है, राइट? तो नॉर्मली हम लोग उसको एक्स आई रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्स till the ith observation on x. Now ith observation on x means I could be where I is any number. I could be any number, मतलब I कुछ भी हो सकता है आपका 1 2 3 till n. ठीक है, till n numbers, it could be anything. Fine. जैसे आप यहाँ पर टेबल में देख ही रहे हो, ये वाले टेबल में आप देखो, हम x1 जैसे 4 को ले रहे हैं, x2 हम ले रहे हैं मीन्स 2 को ले रहे हैं, 3 4 ऐसे हम कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, हम ऐसे करके ले सकते हैं, राइट? सो टोटल देर आर, आप इस टेबल में देखो हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 1 2 3 4 and 4 times 4 is 16. So total there are 16 observations, right? Now the observations are not all different, some of them are repeated. You can just observe from this table that these observations are not totally different, like you will have 4 here. Okay, now in my case it is actually different. Sometimes the observations are repeated. Here you might not find any repeated, but let me write this for you, make this as repeated, otherwise you will not be able to understand. चलो ये ऑब्जर्वेशंस काफ़ी कम है, दिस जस्ट फॉर एग्जांपल, इसलिए ऑब्जर्वेशंस नहीं दिख रहे थे. जैसे ये एक टेबल जो है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस है, यू अंडरस्टूड व्हाट इज x1 x2 x3, ये समझ में आ गया ना. ना यहाँ पे जो इतने सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें देखो कुछ रिपीटेड वैल्यूज हैं, राइट? दिस ऑब्जर्वेशंस कुछ तो मैंने रिपीट होंगे ना, जैसे किसी दिन 4 था, फिर नेक्स्ट वीक में उस दिन फिर से 4 हुआ, राइट? इस वीक में एक दिन 2 था, 2 number of accidents. Again we found that this was repeated in the third week. ठीक है, अब फर्स्ट वीक में 3 एक्सीडेंट थे, अगेन वो हम देख रहे हैं कि इसका रिपीटेशन हुआ ऑन 4th वीक. तो इस तरीके से वी ऑब्जर्व दैट few values are repeated, कुछ रिपीट है. The distinct observation are known as values of the variable. ये जो हमारे डिफरेंट जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, इस तारीख को एक ऑब्जर्वेशन, दूसरी तारीख को एक ऑब्जर्वेशन, हम देख रहे हैं ना, अलग अलग है. दिस आर ऑल डिस्टिंक्ट. तो दिस आर डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यूज आ रही है, ये जो वैल्यूज है, इसको हम बोलते हैं वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. इज क्लियर? आई थिंक दिस observation are known as values of the variable. तो डिफरेंट, हमने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन किया, उस ऑब्जर्वेशन की जो एक्चुअल वैल्यू, मैंने 1 तारीख को ऑब्जर्वेशन की, मे बी 1st मई को, तो
फर्स्ट मे को 4 आए, तो द फर्स्ट मे के ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल? द वैल्यू इज 4. So variable observed is, what is the variable observed? Variable observed is my daily number of car accidents, right? वेरिएबल ये हो गया. अब वेरिएबल की वैल्यू क्या है? वेरिएबल की वैल्यू है 4. इज दिस क्लियर? इस तरीके से मीन्स it's very important that before we go ahead with the actual practical sums, we must know the terms clearly. ठीक है? Now, what is the frequency now? Frequency of a value of a variable is the actually the number of times any values occur in the table. Right? Like here you can see that frequency for the value 4 is twice. 2 is also twice because I just took this as a just for your explanation. I'm not taking a practical chart or practical table. It's just for your explanation. आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है. इस वजह से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं मिल रही है आपको. बट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो? फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू of the variable is the number of times it occurs in a given series of observations. क्लियर? तो यहाँ पर क्लियर है कि एक वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू, देखो एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन किसका है? वेरिएबल का. वेरिएबल का क्या है? वैल्यू. उस वैल्यू का फ्रीक्वेंसी. तो मैं एक बार शॉर्ट में लिखती हूँ. पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन हम किस चीज का करते हैं? एक वेरिएबल का, राइट? उस वेरिएबल का क्या होता है? वैल्यू. अब वो वैल्यू कितनी बार आई है एक डेटा सेट में, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. इज दिस 4 टर्म्स क्लियर टू यू? ये वाला सेक्शन क्लियर हो गया? अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन. हाँ मैम. चलो, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिंपल सीरीज और अनग्रुप्ड डेटा. फाइन. एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हम लोग आ जाते हैं सिंपल सीरीज. अब सिंपल सीरीज हमारी क्या है, या अनग्रुप्ड डेटा जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं. ओके. नाउ सिंपल सीरीज और अनग्रुप्ड डेटा आर अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड विदाउट एनी डेफिनेट सिस्टमेटिक अरेंजमेंट. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोई भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या सिस्टमेटिक डेटा या प्रॉपर एक डिफाइन नहीं है. जैसे अभी हमने ऊपर जो देखा उसमें क्या था? उसमें कोई भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट तो नहीं था. बस ऐसे ही एक डेटा सेट देख रहे हो, बस उसको किसी भी तरह अरेंज कर दिया हमने, राइट? तो दैट वाज नॉट क्वाइट सिस्टमेटिक. तो अब हम लोग यहाँ पर सिंपल सीरीज की बात कर रहे हैं. तो सिंपल सीरीज या अनग्रुप्ड डेटा ऐसा ही होता है. वहाँ पे देयर आर सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन and there are no definite systematic arrangements are done, right? If however a large number of observations are available in the form of simple series, the mind cannot properly grasp their significance. Actually, it's not possible. If you see such a huge data, some methods of condensation of data is therefore necessary. Let me show you. There's a data I could found it for you. Let me see. No, I don't think it's there. May have deleted it. I was just doing a value at risk project. So for that means I was just teaching to one student. So there was huge data. हम लोग सेबी के SBI लाइफ के एक 10 साल के डेटा को ऑब्जर्व कर रहे थे. तो जब ऑब्जर्व कर रहे थे तो ह्यूज डेटा. अब देखो जब ह्यूज डेटा, सपोज ऐसा ही इतना पूरा पेज, लेट मी टेक एन एग्जांपल. ऐसे 10, 11, 12, 13 ऐसे करके 1, 5, 8 ऐसे अगर डेटा रहेगा, ठीक है. चलिए, ये तो मैंने छोटा सा ऐसे पूरा पेज भर के डेटा है, बहुत ह्यूज डेटा. ये तो काफी छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया. पेज भर के ऐसे डेटा है. आप उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन क्या ग्रास्प कर पाओगे? यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी सेंस ऑफ इट. कुछ समझ में आएगा क्या? कुछ भी समझ में नहीं आएगा.
तो हमें वी नीड सम मेथड ऑफ कंडेंसेशन। डेटा को देखो बिल्कुल रिकॉर्ड किया गया, बिल्कुल एक कोई प्रॉपर डेटा है ही नहीं। सिंपल सीरीज का मतलब ये है कि देयर इज नो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स या डेफिनेट वे ऑफ अरेंजमेंट इज डन, राइट। छोटा मोटा डेटा है इट्स फाइन, बट इफ देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो क्या होगा? इफ देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा then definitely it would not be easy to get any information. When there's a large amount of data, students or means anyone, employer, employee, whoever, an organization, whoever is getting this data or working with the data, they cannot get any significance. See, why we are working with data? ये data से काम करने का कोई मतलब तो है ना, because we need to analyze some record, we need to interpret or we need to take certain decisions. तो mind जो है is in this large amount of data with no systematic arrangement done, then mind cannot properly act on it. You can say it's just act on it or grasp their significance properly. उसकी significance को समझना is quite difficult for the mind. Fine, एकदम difficult होगा। तो हमें क्या चाहिए? उस डेटा को कंडेंस करने का या उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए कुछ डेटा कंडेंसेशन मेथड होना चाहिए, राइट। इट्स देयरफॉर नेसेसरी। If the order in which the observation have been recorded is immaterial, one way of doing this to write down the values of the variable in order of magnitude and show the corresponding frequencies side by side in a tabular form. अब देखो हम लोग इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। हम लोग इसके लिए एक सबसे पहले होती है, अगर हमें देखो इस डेटा को कंडेंसेशन हम किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल, राइट, और एक होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of the table. These are the two methods for condensing the data. You can say this just condensing the data. अब देखो फ्रीक्वेंसी टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो ही लेते हैं हम, इसका मेन रीजन क्या होता है? देखो एक हो गई इफ देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, अब उसमें अगर मुझे जो डेट्स है वो मेरे लिए मैटर नहीं करती। इफ द ऑर्डर इन विच द ऑब्जर्वेशन हैव रिकॉर्ड, इफ आई डोंट नीड दैट means huge information and we don't need the information in a systematic manner or in a date wise manner in the order of occurrence, तो जब डेट वाइज मुझे नहीं चाहिए then we can just simply write down the values of the variable कि कौन सी values है in order the magnitude and so the corresponding frequency side by in a tabular form, जिसको हम frequency table बोलते हैं। frequency table में just हम लोग क्या करते हैं, frequency table वहाँ पे हम जस्ट क्या करेंगे, सपोज दिस इज द वेरिएबल 10। अब ये जो एक वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, दिस हैज ऑकर्ड मे बी 15 टाइम्स इन द टोटल टेबल। आप टेबल में देख लो कितनी बार आया है, तो ये दिस इज द वेरिएबल, जस्ट शॉर्ट में वेरिएबल एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ये इजी एक लैंग्वेज में मैंने समझाया, फ्रीक्वेंसी ऐसे आप समझ सकते हो। चलो लेट्स मेक इट मोर क्लियर। जैसे ऊपर हम डेली नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स को लेकर पढ़े थे, तो यहाँ पे डेली नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स, डेली नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स, और उसकी मैं लेती हूँ फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कितनी बार आया है, नंबर ऑफ डेज we recorded। Daily number of car accidents that is recorded is 3, 4, 5, 6, 7. This is the daily number of car accident। अब इसको रिकॉर्ड किया गया है कितनी बार, फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसको जस्ट लिख रही हूँ इन द नंबर ऑफ डेज वी हैव रिकॉर्डेड इन नंबर ऑफ डेज। तो फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है, 5 बार, 5 दिन, 9 दिन, 11 दिन, then 4, then 1। This way we can just make a simple frequency
टेबल, और मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ, सिंपल फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अभी तक क्लियर है? तो हम लोग एक सिंपल वे है जहाँ पे हम लोग डेटा को कंडेंस कर पा रहे हैं, दिस इज वन वे, फाइन। तो नॉर्मली as I said that we, if the date of occurrence or the values is not important for us, हम लोग जब frequency table कब use करेंगे, frequency table is one way of condensing the data। तो frequency table कब use करेंगे, जहाँ पर हमारे लिए मैग्नीट्यूड और द ऑर्डर इज इमटेरियल, जहाँ पे हमको ऑर्डर की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड कितना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो वी कैन जस्ट write the variable and value of the variable and just show the corresponding frequency। तो यहाँ पर frequency table में क्या कर रहे हैं हम, just variable value, variable की value लिख रहे हैं कि भाई जो variable है, any variable, like variable क्या हो गया, again the variable is same, I hope you remember the same thing। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, डेली नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स, उसका वैल्यू हम लिख रहे हैं, दैट इज 3 4 5 व्हाटएवर। अब उसकी हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मेंशन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारी, कितनी बार आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल एक फ्रीक्वेंसी टेबल, और मोर यूजुअली वी से इट यूजुअली इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं वी से इट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल। तो हम इसको फ्रीक्वेंसी टेबल बोले या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल भी बोल सकते हैं, दो ही टर्म कैन यूज, वी कैन यूज बोथ द टर्म। डेटा कंडेंस करने के लिए वी कैन यूज दिस सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आई होप ये तो समझ में आ ही गया है। लेट मी जस्ट राइट दिस फॉर यू वंस अगेन। Frequency distribution is a statistical table which shows the value of the variable arranged in order of magnitude, either individually or in groups, and also corresponding frequencies side by side. There are two types of frequency distribution। अब देखो frequency distribution हमारे दो तरह के हैं। frequency distribution क्या है, frequency distribution का मतलब होता है जहाँ पर हम अपने values जो हैं, values of the variable, they are arranged in magnitude। magnitude माने छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, या according to the date, इस तरीके से frequency distribution इस तरीके से होता है। ठीक है, तो it's a statistical table, definitely frequency distribution is also statistical table। जैसे ये frequency table हमने लिया, वैसे ही frequency distribution है, frequency distribution is also a table, वो भी कुछ टेबल जैसे ही, बट जहाँ जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमें कुछ मैग्नीट्यूड या ऑकरेंस स्टेट देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोल रहे हैं, मैं लेट मी राइट दिस देन इट विल मेक मोर क्लियर। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल which shows values of the variable arranged in order of magnitude, either individually or in groups, and तो है वैल्यूज तो आ गई। मेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, वैल्यूज तो है ही, बट उसकी फ्रीक्वेंसीज तो इम्पोर्टेंट है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो फ्रीक्वेंसी है, एंड ऑल्सो दी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज बाय साइड। ठीक है, अभी जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। One is simple frequency distribution, fine, and another is group frequency distribution। Okay, अब हम लोग simple frequency distribution और group में next day हम लोग proceed करेंगे।